हेलो एवरीवन, हेलो विंटर्स। जी हाँ, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम विंटर अगेन। बट आप जानते हैं ना कि विंटर के साथ साथ जैसे ही विंटर्स शुरू होती हैं, हम सब बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए एक बढ़िया सा माहौल पढ़ाई का छा जाता है। जी हाँ, कैसे? बढ़िया। आपका स्कूल का जो विंटर सेशन है, विंटर्स स्टार्ट होते ही आपका जो सेशन है वो एंडिंग पे आ जाता है। आपका सेशन एंडिंग शुरू हो जाता है, जिसका एंड कैसे होगा? बाय योर फाइनल एग्जामिनेशंस, इजंट इट? तो विंटर्स के साथ साथ हमारे पास पढ़ने के लिए अथाह भंडार होता है। जी हाँ, स्कूल में जो भी आपने पढ़ा और जैसे भी आपने प्रिपेयर किया, अपनी बढ़िया सी काउची फॉर्म में अच्छे ठंडे मौसम में ठंड का सर्दी का आनंद लेते हुए बढ़िया अपनी रज़ाई में एंड अपना इन द शेड ऑफ सन इफ सन इज देयर, आप लोग हम सब स्टडी को फोकस करते हैं। हम सभी बच्चे पूरी दिलो जान से लग जाते हैं अपनी पढ़ाई में, क्योंकि आफ्टर जैसे विंटर एंड होते हैं आपके एग्ज़ाम्स रहते हैं आपके साथ, जो आपको एक नए पड़ाव, नई मंजिल, नई क्लास तक पहुंचाते हैं। तो इसी के साथ आगाज़ करते हैं अपने रिविजनरी वीडियोस का। सबसे पहले हमारे पास हमने टॉपिक लिया है वर्क, एनर्जी एंड पावर। जी हाँ, ये आपके किसी भी फिजिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन दो in your classes examination also, it is very very useful. So let's get started with the first topic, that is work, energy and power. Work. What is work? If the applied force is in the direction of displacement, then it is known as work. The formula of work is, as we are aware, W is equals to vector F dot vector S. What is vector here? As force is in the direction of acceleration and displacement is also having direction with magnitude. So the formula of work is W is equals to F vector F dot vector S. But अगर आप A vector dot B vector के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को खोलते हैं, ओपन करते हैं, देन फॉर्मूला विल बी ए बी कॉस थीटा, isn't it? For work it will be W is equals to Fs cos theta. What is the theta? Theta is the angle between F and S. Okay? Now force is having two components, vertical and horizontal. If the force is applied horizontally, work done will be W is equals to Fx. देखिए, हम जब भी horizontal component लेते हैं force का, तो Fx होता है Fx डॉट S, और वेयर Fx इज F cos थीटा, और जब हम वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं तो Fy एंड Fy इज इक्वल्स टू F sin थीटा. एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज a component angle here. So W is equals to F cos theta dot S. If force is applied vertically, work done will be W is equals to Fy dot S, and Fy क्या था हमारा? F sin theta. तो formula will be W is equals to F sin theta dot S. Okay. Now here are some cases arises in according to the components. देखिए, first, if F is applied in x axis, अगर force x axis के according अप्लाई करते हैं तो देखिए, आपने वेक्टर फॉर्म पढ़ी होगी till now, you have aware about all the chapters. तो F वेक्टर का कंपोनेंट क्या बनेगा? F वेक्टर को अगर हम डिस्क्राइब करें तो Fx I कैप प्लस Fy वेक्टर J कैप प्लस Fz वेक्टर K कैप. And what about displacement, that is S vector? So it will be Sxi cap plus Syj cap plus Sz k cap. क्यों आया ये? क्योंकि आप जानते हैं वेक्टर A इज इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और अगर हम इसका मॉड यानी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इट विल बी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. नाउ if F vector is applied in y-axis and z-axis, so similarly formula will be W is equals to Fy vector mod dot S vector. Similarly, W is equals to Fz vector mod S vector mod. If S vector displacement is in x-axis, y-axis or z-axis, then what will be the formula of work?
then it will be W is equals to F vector mod dot Sx vector in respect of x-axis. Okay, and if it will be in y-axis, then what will be the formula? W is equals to F vector mod Sy vector mod. Similarly, we can solve for z-axis. W is equals to F vector mod Sz vector mod. Now, if F vector is equals to A1 I cap plus B1 j cap plus C1 k cap, and S vector is equals to A2 I cap plus B2 j cap plus C2 k cap, then what will be the work done? W is equals to F vector dot S vector, wheel product these two vectors, then it will be dot product. W is equals to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. This will be the answer. Now, if you have any numerical kind of this, if any object applied force in terms of displacement x, find out the work done. Then F is equals to what? ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, इज इक्वल्स टू 3x + 1 न्यूटन. अब आप ऐसे केसेस में क्या करेंगे? देन यू विल सॉल्व इट बाय इंटीग्रेशन मेथड. W is equals to इंटीग्रेशन x1 फ्रॉम x1 to x2 f dx. आप ये फॉर्मूला लगाकर 3x + 2 dx को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. तो अभी आपको उन्होंने बताया क्वेश्चन में, इफ अप्लाइड फोर्स इज F equals to 3x + 2 Newton, find out work done for the displacement from x1 is equals to 1 meter to x2 is equals to 4 meter. आपको क्या करना है? लिमिट इज गिवन टू यू, तो आप इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करके यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस as you are observing on your screen. इंटीग्रेशन 1 to 4 3x dx जैसे कि आपने फॉर्मूला सॉल्व किया, एंड प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 2 dx, then you will get the answer 28.5 joules. Now work energy theorem. Now work energy theorem, the statement will be the change in kinetic energy is always equal to the work done. Means W is equals to del K. W क्या है आपके पास? half mv square minus u square, where these are the change in kinetic energy. Kinetic energy final is half mv square and kinetic energy initial is half mu square. So you can replace it with the term W is equals to kf minus ki. This is your formula for work done in respect to change in kinetic energy. Now, what kind of work we are having? Positive work, negative work and zero work. Now what is positive work? If x, the applied force is always in the direction of displacement, अगर जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, तो व्हाट आर द कंडीशन? थीटा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, मीन्स थीटा इज एक्यूट एंगल. तो मतलब इट लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री. इस तरह का वर्क जो होगा वो होगा पॉजिटिव वर्क. और एग्जाम्पल क्या होंगे आपके पास? इफ अप्लाइड फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, सी द बॉक्स, यहाँ पर एक बॉक्स है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली आपने फोर्स अप्लाई की, यानी थीटा जो है दोनों के बीच में 0 डिग्री है, पैरेलल है, दोनों आपस में, दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल. देन द एंगल विल बी थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. सो फॉर्मूला विल बी W इज इक्वल्स टू Fs cos थीटा, Fs cos 0 and cos 0 is equals to 1. So answer will be W is equals to Fs maximum. And it is known as maximum work. W is equals to Fs because देखिए दोनों एंगल 0 पे है, फोर्स जहाँ पे आप लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉक्स मूव कर रहा है. So it will be maximum work. Now what are the examples of positive work? देखिए, to lift any object, जब भी कभी आप कोई ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, to hang any object, work done under gravity, and when Potter elevate in elevator. ये सब क्या है? Theta is 0 to 90 degree in between. So these are the example of positive work. In this you will get the maximum work done. Okay, this is known as positive work. Now negative work. When applied force is opposite to displacement, that is called negative work. मतलब means आप ऑब्जेक्ट मूव करा रहे हैं लेकिन वो अपने पोजीशन पे बैक ही है, मतलब वहीं रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, मीन्स F इज एंटी पैरेलल टू
डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब वही प्लेन पे ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं है तो 180 डिग्री क्या होता है कॉस में -1, तो आंसर विल बी W इज इक्वल्स टू -FS। दिस विल कॉल्ड नेगेटिव वर्क। ओके, नाउ हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क। यस, अब हमने नेगेटिव वर्क पढ़ा तो उनके एग्जाम्पल देखिए। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, हम चलते हैं आगे हैं, हमारा फुट पीछे की तरफ, क्योंकि उसी वजह से फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आप वॉक कर पाते हैं। नेक्स्ट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, हमें कोई ऑब्जेक्ट अपने अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ ले जाना है अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन बाय विस्कस फोर्स, आपके पास कोई भी विस्कस लिक्विड है, उसमें जो दो लेयर के बीच में जो फोर्स लगती है दैट इज विस्कस फोर्स, मतलब डायरेक्शन ऑफ लिक्विड इधर जा रही है तो फोर्स जो लग रहा है विस्कस फोर्स वो अपोजिट लगता है। सिमिलरली वर्क डन बाय टेंशन स्ट्रेस्ड स्प्रिंग में, स्ट्रेस्ड स्प्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होती है दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्क। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस एंड वर्क डन इन पुली सिस्टम, दीज ऑल आर नेगेटिव वर्क। ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, जीरो वर्क। यस, जीरो वर्क भी होता है, मतलब बंदा वर्क कर रहा है लेकिन उसका वर्क जीरो नेग्लिजिबल होगा। कैसे? व्हेन अप्लाइड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा? थीटा एंगल विल बी 90 डिग्री, तो cos 90 इज इक्वल्स टू 0, देन वर्क डन विल बी 0। अब जीरो वर्क कंडीशंस 3 हो सकती हैं आपके पास। व्हेन फोर्स इज 0 तो भी वर्क 0 होगा, व्हेन s डिस्प्लेसमेंट इज 0 तो भी वर्क 0 होगा, थीटा एंगल इज 90 डिग्री तो cos 90 विल बी 0, सो वर्क विल बी 0। एंड हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो वर्क। वेरी इंटरेस्टिंग, आप रेलवे स्टेशन पर पोर्टर को देखते हैं, वो सबका सामान लेके जाता है अपने सिर पर उठा के। होता क्या है, वो इतना सारा सामान लेके जा रहा है लेकिन फिर भी उसका वर्क नेग्लिजिबल है, 0 है। लेकिन एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन की वजह से तो उसको ने कुछ कार्य किया, वर्क किया। लेकिन अगर वर्क डन आप वैसे देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के जस्ट परपेंडिकुलर है, ड्यू टू दैट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो वर्क विल बी 0। एंड वर्क डन इन फ्रिक्शन लेस सरफेस पर भी 0 होता है, यानी अगर कोई ऐसी सरफेस है जो फ्रिक्शन फ्री है, FS 0 है, तो वर्क भी 0 होगा। ओके, नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग, सी वर्क डन इन सर्कुलर पाथ। अब देखिए सर्कुलर पाथ पर वैसे ही कोई एक सर्कल पूरा कर कर कंप्लीटली अगर डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाता है, जैसे कि एक पॉइंट से चला उसी पर पहुंचा, तो भी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप फिगर देख रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पर अगर कोई इस तरफ सर्कल का मूवमेंट है सर्कुलर पाथ में और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है वो नीचे परपेंडिकुलर लग रहा है, देन cos 90 विल बी 0, तो भी वर्क 0 होगा। एंड आप ये अपना थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ना, आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस भी 0 होगा बिकॉज वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो डेल V विल बी 0, तो वर्क डन का फॉर्मूला वहाँ होता है P डेल V, तो वर्क डन वहाँ भी 0 होगा। एंड वर्क डन इन परपेंडिकुलर फोर्स, अगर कहीं पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड है डिस्प्लेसमेंट पर, तो भी cos 90 0 होने की वजह से वर्क डन 0 होगा। तो आपने देखा कि 0 वर्क के कितने सारे एग्जाम्पल्स हमारी लाइफ में हम प्रैक्टिकली पढ़ते हैं। नाउ मूविंग अहेड, वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दैट इज फ्री फॉल बॉडी। कोई बॉडी ऑब्जेक्ट ऊपर से फ्रीली फॉल कर रहा है, तो ग्रेविटी जो होगी 0, ड्यू टू दैट फोर्स इज इक्वल्स टू mg फॉर्मूला होता है, तो फोर्स यहाँ पर 0 हो गया, देन वेटलेस हो जाती है बॉडी, वेटलेसनेस पढ़ा है ना आपने, तो वर्क विल बी 0। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क and its SI unit is joule. CGS is urge. What is 1 joule? 1 joule is equals to 10 raised to power 7 ergs. And what kind of energies are there? There are 2 types of energy, kinetic energy and potential energy. The formula of kinetic energy is K is equals to half mv square, and potential energy due to the position of the object, that is U is equals to mgh. Okay, now kinetic energy, what do you understand by kinetic energy? Energy due to motion of any object
यानी k is equals to half mv square. This is the formula. And condition was, what is the condition? The body must be uniform, यानी same position पे चल रही है. Body must be start with the rest. Rest से start हो रही है, यानी उसका initial velocity already 0 है. Now here is a little derivation of kinetic energy. What you people are quite aware about that. W is equals to F dot S. Force का formula you know. Force is equals to mass into acceleration. So W is equals to mass acceleration dot S, यानी mass into acceleration into displacement. This is your equation 1. Now from third equation of motion, you know v square is equals to u square plus minus 2as. यहाँ से v square minus u square upon 2a is equals to s आ जाएगा. We'll put the value of s from 2 to 1, then we'll get w is equals to ma into v square minus u square upon 2a. The formula will be half mv square minus u square, and then we'll break it in two parts, half mv square minus half mu square. अभी आप पढ़ के आए हैं kinetic energy. This is, it is kinetic energy, that is k, half mv square minus half mu square, where u is 0. तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा w is equals to k is equals to half mv square, because initial velocity is 0. Now प्रॉपर्टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी. देखिए काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव. काइनेटिक मीन्स काइन मीन्स चलना मीन्स मोशन, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा. इट डज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट के डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता. फॉर एस्केपिंग ग्रेविटी ऑफ अर्थ काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब देखिए ग्रेविटी के केस में ये जो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा होता है. एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? अब अगर हम इसके ग्राफ प्लॉट्स करेंगे, बिकॉज देखिए हम कोई भी फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उनके ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑन दिस बेसिस द ग्राफ विल बी लाइक दिस. देखिए फर्स्ट केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. If m is constant, k will be directly proportional to v square. Then graph will be, जब भी कभी ये स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो ग्राफ आपका होता है कर्व शेप में. तो काइनेटिक एनर्जी अबव इंक्रीज होगी तो अपवर्ड ग्राफ, एंड डिक्रीज होगी डाउनवर्ड ग्राफ. नाउ it's completed. Now we'll meet in next class with the next part for the revisionary video for work, energy and part. Till then, stay happy and blessed. Thank you. Bye-bye.